Hello everyone, Amit Arora from EcoVisionaire. I hope you have watched the most expected topics and questions of macroeconomics for term 2. And today we have Indian economic development. We will do 2 chapters today. We'll do employment and infrastructure. So I have just taken out some very important questions जो expected हैं इस बार बोर्ड में. चैप्टर है हमारे 2, employment and infrastructure. I'll start with employment first and then we will move to infrastructure. Coming to the most expected question of employment, I think many teachers have given in your pre-board also. What is worker population ratio? A small numerical can also come on this. तो आपको इसको ठीक से पढ़ना है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. From any book you can read this question. What is worker population ratio और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? किसी कंट्री का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जानना क्यों जरूरी है? Second is why more males are found to be working as compared to females. इसमें urban, rural दोनों का आएगा. इसमें आपको टेबल भी, the table can also be given to you. So table analysis can also be given and normal 2 marker can also come on. This question can come in 2 marks. Define informalization of workforce और या फिर formal और informal sector, इसको आप organized और unorganized sector कहते हैं, उनका difference भी आ सकता है. And what is informalization and also it can be what is casualization of workforce. ये topic काफी ज़्यादा important है. Then a small question on sources of data on unemployment. हमें कहाँ से census, किससे हमें unemployment पे data मिलता है, ये हमें ये भी learn करना है. Coming to the unemployment part of the chapter, 2 very important unemployment जिसपे हम short note आ सकता है, यहाँ कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है. डिस्गाइज एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें प्रिपेयर करना है. देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, उसमें डायरेक्ट जनरेशन एंड इनडायरेक्ट जनरेशन एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, वो आपको करना है. और आपने पॉवर्टी में जो एलिवेशन प्रोग्राम्स किए थे स्पेशली मनरेगा, वो भी प्रिपेयर करना है. एंड योर वेरियस प्रोग्राम्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. जिन्होंने पॉवर्टी में लर्न कर लिया था, इजी नाउ बिकॉज यू हैव टू डू द सेम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो, दोनों सेम है. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि रिसेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, और एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस देखे गए हैं. लाइक वर्क फ्रॉम होम देखा गया है, आउटसोर्सिंग हो रही है, then we have jobless growth in India and all those recent changes which have been seen in the workforce in India. And in the end I'll say students, this is very very important. Employment has lot of tables और table आपको NCERT की follow करने हैं. And one more thing, you don't need to learn any table. So many teachers में एक doubt था काफी teachers में कि क्या ये table learn करने हैं. नहीं, बच्चों को table learn नहीं करने. Table will be given to you and you will be analyzing or you can be comparing, you will be comparing. Question will be asked on table analysis. तो कोई भी database question आ सकता है इस चैप्टर में, पर आपको ईयर के साथ वो टेबल दिया होगा. So don't worry about mugging up any table. So this can, one example I've given you. This is category of workers, self-employed, casual and regular salaried. तो उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि ज्यादा रेगुलर सैलरीड मेल क्यों है, फीमेल क्यों नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें से. एंड एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच दे वांट टू आस्क. यू शुड अंडरस्टैंड द डेटा जो आप पढ़ रहे हैं. दिस इज ऑल व्हाट यू कैन डू इन एम्प्लॉयमेंट, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है. Coming to the next topic, that is infrastructure. Very limited part is coming in infrastructure. As you all know, इसमें से पूरा एनर्जी सेक्टर कट चुका है, पूरा एनर्जी. एंड कमिंग सेशन में तो ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है. पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन डिलीटेड इन 2022-23 के अंदर. ये चैप्टर ही नहीं है हमारा सिलेबस में. बट अभी जो बोर्ड दे रहे हैं हम उनके लिए बात कर रहे हैं, 21-22 बैच के लिए. सो वी हैव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल. एज यू ऑल नो, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली हेल्प करता है दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रा, एंड जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है दैट इज सोशल. सो योर पावर, योर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं. और your health and your housing and your education, they come under social infrastructure.
coming to a very important question. I think many students must have already learned this question. क्या इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की, या फिर जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है उसको क्या एज मिलता है दूसरी कंट्री से, what benefit and what is the importance of having a good infrastructure and what is its role in country's economic development. Jumping to the health sector, क्योंकि एक ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में आ रहा है. सो हेल्थ के अंदर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो आपके पास पूरा एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ है इसके ऊपर कि कैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल इंडिया में इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो यू हैव टू राइट दैट. देन अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इट्स इंपॉर्टेंस. आयुष की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए इसके लिए. सो कोविड टाइम में वैसे भी आईएसएम की बड़ी वैल्यू बढ़ गई थी. देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ सेक्टर. ये आपको ठीक से हेडिंग बना के याद करना है. एंड इन द एंड, एज आई ऑलवेज टेल यू, इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो हैज 2-3 tables in your NCERT. So those tables can be given to you for comparison. किसी कंट्री के साथ आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर कर देंगे. और वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ केस स्टडी लिंक टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रोबेबली इट विल बी ऑन कोविड-19. तो कैसे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद डेवलप हुआ है, या उस टाइम पे वो कैसे कोप अप नहीं कर पाया विद द पैंडेमिक. सो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. And teachers and students, if you want sample papers, you want tests to be practiced, and you want some free material where you can practice for your boards, and also teachers can also get some material so they can go for EcoVisioner app. And for any exam related study material, you can contact us on 9891203546 or 8929459674. I request all of you जिसको ये वीडियो पसंद आया वो अपने दोस्तों को जरूर भेजे. और आई एश्योर यू दैट 90% ऑफ योर बोर्ड पेपर विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स, एज दीज कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो बाकी 2 चैप्टर हमारे रह गए हैं डिस्कशन के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.